آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ 11ویں جماعت میں داخلوں کے لیے آن لائن درخواست دہی کا سلسلہ ہوا شروع۔ ضلع اورنگ آباد کے کالجز میں 83,600 داخلوں کی ہے گنجائش۔ 30 مئی کو ظاہر کی جائے گی میرٹ لسٹ۔ مستقبل کے قانون داں کہلانے والے 53 اسٹوڈنٹس پائے گئے ماسک کاپی کرتے ہوئے۔ بیڑ کے بارشی روڈ پر موجود لاء کالج میں پیش آیا نقل بازی کا واقعہ۔ تمام نقل بازوں کا پرفارمنس رد کرنے کی ہدایت۔ سنت گاڑگے بابا دیہی صفائی مہم کے تحت مختلف گرام پنچایتوں میں کیا جانے لگا ہے صفائی کاموں کا جائزہ۔ علاقائی سطح پر شروع کی گئی جانچ مہم میں متعلقہ کنڑ اور سوئے گاؤں کا کیا گیا سروے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اور میونسپل کارپوریشن میں مینول کام ختم کر کے ای آفس شروع کیے جانے کا زور و شور سے کیا گیا تھا دعویٰ، مگر گزشتہ 5 دنوں سے ای سسٹم ہے بند۔ اہم اور ضروری فائلوں نے شروع کر دیا آف لائن سفر۔ کہیں ملازمین کو برطرف کرنے کے سبب تو نہیں ای سسٹم کیا گیا خراب، شہریان کا سوال۔ اب خبریں تفصیل سے۔ 11ویں جماعت میں داخلوں کے لیے آن لائن درخواست دہی کا سلسلہ جاری ہے۔ اورنگ آباد ضلع کے کالجز میں 83,600 طلباء کو داخلہ دینے کی گنجائش ہے۔ واضح رہے کہ سال رواں 11ویں جماعت میں داخلوں کے لیے آن لائن درخواست دہی کا عمل شروع کر دیا گیا۔ پہلے ہی دن ڈویژن کے لیے 1,329 اور اورنگ آباد کے لیے 488 رجسٹریشن کیے گئے۔ آج سے عملی طور پر طلباء کے لیے درخواست دہی اور کالج کی پسند سے متعلق رجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا گیا۔ طلباء کی رہنمائی کے لیے ویب سائٹ پر معلوماتی کتابچہ بھی موجود ہے۔ اورنگ آباد کے مختلف کالجز میں جملہ 83,600 طلباء کے داخلوں کی گنجائش موجود ہے۔ یہ اطلاع شعبہ تعلیم سے موصول ہوئی ہے۔ 30 مئی کو پہلی میرٹ لسٹ ظاہر کی جائے گی۔ 1 جون تک طلباء اس فہرست پر اعتراض درج کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنی درخواستوں میں موجود رد و بدل بھی کر سکتے ہیں۔ 3 جون کو قطعی میرٹ لسٹ جاری کی جائے گی اور اس فہرست کے مطابق 5 جون کو کس اسٹوڈنٹ کو کس کالج میں داخلہ ملے گا اس کی اطلاع ویب سائٹ کے ذریعے دی جائے گی اور 6 جون کو کالجز کی فہرست پورٹل پر ظاہر کی جائے گی۔ 6 تا 12 جون کے درمیان داخلوں کا عمل مکمل کر کے دستاویزات اپلوڈ کرنا لازمی ہوگا۔ 14 جون کو داخلوں کے لیے دوسرے راؤنڈ کی نشستیں ظاہر کی جائیں گی۔ اس طرح کی اطلاع ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے موصول ہوئی ہے۔ علاقائی کینسر ہاسپٹل کو مزید مستحکم بنانے کی غرض سے یہاں نئے وارڈز قائم کیے جا رہے ہیں، جسے اندرون ایک ہفتہ شروع کرنے کا فیصلہ ڈین ڈاکٹر شیواجی سکرے نے کیا ہے۔ اس ضمن میں گورنمنٹ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل کے ڈین ڈاکٹر شیواجی سکرے نے ایک اہم میٹنگ طلب کی۔ اس کے بعد انہوں نے علاقائی کینسر ہاسپٹل کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر کینسر ہاسپٹل کے اسپیشل ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر اروند گائیکواڑ، ڈاکٹر اجے بوراڑکر، ڈاکٹر رشیکیش کھاڈلکر اور ایڈمنسٹریٹو آفیسر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے، جس کے بعد ڈین ڈاکٹر سکرے نے یہ وارڈز فوری شروع کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے الماری، اسٹریچرز، گرلز، لیریگوسکوپ اور اسٹیشنری فوری فراہم کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ کم از کم 2 وارڈز آئندہ ہفتے شروع کر دیے جائیں۔ مستقبل کے ماہر قانون کہلائے جانے والے 53 لاء اسٹوڈنٹس ماسک کاپی کرتے پائے گئے، لہٰذا ان کا پورا پرفارمنس رد کرنے کی ہدایت وائس چانسلر ڈاکٹر وجے پھلاری نے ایگزامینیشن برانچ کو دی ہے۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے تحت پوسٹ گریجویشن کے امتحانات 29 اپریل سے شروع ہوئے، جبکہ پروفیشنل اسٹڈی کورسز کے امتحانات کا آغاز 6 مئی سے ہوا۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر وجے پھلاری نے 29 اپریل کو ضلع بیڑ کے 3 امتحانی مراکز پر اچانک وزٹ دی تھی۔ اس دوران یہاں بالترتیب 15 اور 6 اس طرح سے 36 طلباء کاپی کرتے پائے گئے، جن کی آنسر شیٹ جمع کر لی گئی۔ ان کا پرفارمنس رد کرنے کی ہدایت وائس چانسلر نے دی تھی۔ دوسرے مرحلے میں انہوں نے ضلع بیڑ کے بارشی روڈ پر موجود ایک لاء کالج میں جاری امتحان کے دوران اچانک وزٹ دی۔ یہاں بھی ماسک کاپی کا معاملہ منظر عام پر آیا، جس پر نقل کرنے والے 53 طلباء کے پیپرز جمع کر لیے گئے اور 3 موبائل فون ضبط کر کے ایگزامینیشن ڈائریکٹر کے سپرد کیے گئے۔ وائس چانسلر کی اس اچانک وزٹ کے سبب سپروائزرز اور طلباء میں کھلبلی مچ گئی۔ اہم بات تو یہ ہے کہ 2 دن قبل ہی
डॉक्टर शाइस्ता इनामदार इस कॉलेज में प्रिंसिपल के ओहदे पर रुजू हुई। इस फ्लाइंग स्क्वाड में डॉक्टर प्रवीण यन्नावर, डॉक्टर भास्कर साठे और प्रोफेसर सचिन भुसारी शामिल हैं। वाइस चांसलर ने भरारी पथक के जिम्मेदारान को इस एग्जाम सेंटर की खामियों से मुताल्लिक कार्रवाई की हिदायत दी और मज़कूरा कॉलेज में मास कॉपी करने वाले 60 स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस रद्द करने की हिदायत एग्जामिनेशन एंड एवालुएशन डायरेक्टर डॉक्टर BN डोड़े को वाइस चांसलर ने दी। औरंगाबाद डिवीज़न के इलाकाई कमिश्नर की हैसियत से रियासती हुकूमत ने धुलिया के कलेक्टर जितेंद्र पापड़कर को नामजद किया है। नाजरीन, मौजूदा डिवीजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े आइंदा 31 मई को रिटायर्ड होने जा रहे हैं, लिहाजा रियासती हुकूमत ने उनका जानशीन ढूंढ लिया और धुलिया के कलेक्टर का उस ओहदे पर ट्रांसफ़र कर दिया जो 31 मई को अपने ओहदे का चार्ज हासिल करेंगे। फिलहाल जितेंद्र पाबड़कर धुलिया के कलेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत ने भाग्यश्री विस्पुते का ट्रांसफ़र धुलिया के कलेक्टर ओहदे पर किया है। वाज़ेह है कि जितेंद्र पाबड़कर कुछ साल कबल औरंगाबाद डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से रियासत भर में बेमौसमी बरसात का सिलसिला जारी है और तेज़ हवाओं के सबब कई मकामात पर झाड़ गिर जाने के सबब बिजली के तार टूटने लगे हैं, लिहाजा उनकी मरम्मत का काम जंगी पैमाने पर किया जा रहा है ताकि सारिफीन को परेशानी न होने पाए। ये इत्तला बिजली सप्लाई कंपनी के ज़िम्मेदारान ने दी। महावितरण इंतज़ामिया की जानिब से जारी किए गए सहाफ़ती बयान में कहा गया है, गुज़िश्ता मंगल को सपहर 5 बजे के करीब ताल्लुका वैजापुर के मज़ाफ़ात शिऊर में तेज़ हवाओं और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ ज़ोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से लोनी के 33 kV लाइन पर जुज़वी फाटा खंडाला कोहिली इस मुकाम पर बिजली गिरने से पिन इंसुलेटर फेल हो गया था और शिऊर, लोनी व भादली इन सब सेंटर्स की बिजली सप्लाई बंद हो गई थी, जिस पर बिजली सप्लाई कंपनी के इंजीनियर्स और मुलाजमीन ने जंगी पैमाने पर उसकी मरम्मत का काम शुरू किया और रात के काले अंधेरे में और बरसात में 38 किलोमीटर लंबी इस लाइन की कीचड़ भरे रास्तों से गुजरते हुए जांच की, लेकिन रात के घने घोर अंधेरे में बैटरियों का सहारा लेते हुए दुरुस्ती का काम शुरू किया, जिस पर उन्हें ये फॉल्ट मिला और उन लोगों ने फौरी 35 पिन इंसुलेटर तब्दील करके 40 देहातों के 15,000 साकिनान को अंधेरे से राहत दिलाई और बुध के रोज़ दोपहर 1:30 बजे के करीब वहां की बिजली सप्लाई बहाल की। इसी तरह 19 मई की रात तूफ़ानी बरसात के सबब 400 kV वालूज सब सेंटर से निकलने वाले 33 kV रूरल फीडर से रांजनगांव और तुर्काबाद सप्लाई बंद हो गई थी, लिहाजा महावितरण के मुलाजिमीन ने पेट्रोलिंग करते हुए फॉल्ट की तलाश शुरू कर दी तो पाया कि 400 kV के सब सेंटर के एक जानिब एक दरख्त इलेक्ट्रिक वायर्स पर आ गिरा हुआ है। जब मुलाजिमीन को यह समझ में आया कि इस फॉल्ट को दूर करने में वक्त लगेगा तो फौरी तौर पर दोनों ही 33 kV के सब सेंटर के तुर्काबाद सब सेंटर बैक फीडिंग के जरिए एक्सप्रेस फीडर शुरू करके वहां बिजली फराहम की। कंपनी मुलाजिमीन ने रात के अंधेरे ही में बिजली के तारों पर गिरे दरख्त और उसकी टहनियों को हटाया। इस हादसे में जो वायर टूटे थे वो MIDC को जाने वाले 3 33 kV फीडर की क्रॉसिंग थी। रात में इसकी मरम्मत मुमकिन नहीं थी, लिहाजा 20 मई की सुबह उसकी दुरुस्ती का काम शुरू करने का फ़ैसला किया, मगर उसके लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर के अलावा एग्रीकल्चर पंप्स की सप्लाई बंद करना लाजमी था। लिहाजा सारा माजरा आके चेयरमैन अर्जुन गायकवाड़ को बताकर उनसे ताउन की अपील की और फिर भरी बरसात में उसकी दुरुस्ती का काम शुरू किया और 2.5 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद वहां की बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई। संत गाड़गे बाबा देही सफाई मुहिम के तहत इलाकाई जाँच शुरू कर दी गई, जिसके लिए ताल्लुका कन्नड़ और सोएगांव के मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों की हदूद में हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात का जायज़ा लिया गया। ये जांच मुहिम इलाकाई कमिश्नरेट की जानिब से करवाई जा रही है, जिसमें मुताल्लिका अफसरान ग्राम पंचायत की हदूद में मौजूद स्कूल्स, आंगनवाड़ी, इनफरादी बैतुल-खला स्कीम के अलावा पब्लिक टॉयलेट्स की सहूलत, घन कचरा प्रोजेक्ट, शजरकारी, जीवन मिशन के तहत पानी सप्लाई के इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं। जाँच स्क्वाड में ज़िला परिषद के डिप्टी CEO, पंचायत व जल जीवन मिशन के डायरेक्टर राजेंद्र देसले, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर दीपक कोड़ी, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर डॉक्टर मिलिंद दुसाने और दीगर शामिल हैं। आपण विभागीय स्तरावर स्पर्धेत उतरला आहात, तर विभागीय स्तरावरची स्पर्धा जी प्रश्नावली आहे आपल्या संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियानामध्ये, तर त्या प्रश्नावलीच्या अंतर्गत जी काही मुद्दे आहेत त्याची तपासणी आपले माननीय उद्धवजी होळकर साहेब करणार आहेत। त्याचे सगळे डॉक्युमेंटेशन ते तपासणार आहेत। ग्रामस्थांना दरवेळेप्रमाणे आपण उपस्थित असतात, सगळ्या गोष्टी चांगल्या पद्धतीने केलेल्या आहेत। आपण सगळ्या ज्या म्हणतो आपण की शिक्षण, आरोग्य, नंतर रोजगार
त्याच्यानंतर मानवी निर्देशांकावर पण आपण काम केलेलं आहे. त्यामुळे गावांचा जो आलेख आहे प्रगतीचा, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर अप्रैल के महीने में ई ऑफिस सिस्टम शुरू किया गया है, मगर ये सिस्टम गुज़िश्ता 5 दिनों से बंद है, जिसके सबब यहाँ का कामकाज मुतासिर हुआ है। मगर ज़राए का कहना है कि देखभाल व दुरुस्ती के सबब फ़िलहाल साइट बंद है। वाज़ेह है कि सरकारी दफातर में मुख्तलिफ़ कामों से आने वाले शहरियान को होने वाली परेशानियों को देखते हुए रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने सभी सरकारी दफातर के लिए 100 दिन के कामकाज का टारगेट दिया था, जिसके तहत म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने भी राइट टू सर्विस एक्ट पर सख्ती से अमल करने का फैसला करते हुए शहरियान को दी जाने वाली मुख्तलिफ़ सहूलतें, जिनमें बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट के अलावा दीगर सहूलतें शामिल थी, ई ऑफिस सिस्टम शुरू किया और इस सिस्टम को अच्छी तरह से अमल में लाने की गर्ज से यहाँ के सभी अफसरान और मुलाजमीन को 15 ta 20 दिन ई सिस्टम की तरबियत दी और 12 अप्रैल को बाज़ाब्ता इस सिस्टम का इफ्तिताह किया गया और उस वक्त ये ऐलान किया कि 1 मई से सभी फाइल्स ई ऑफिस सिस्टम के तहत ही कबूल की जाएंगी और फिर 1 मई से ई फाइलिंग का सफ़र शुरू हो गया, मगर 16 मई से महा ई ऑफिस साइट ही बंद हो गई, जिसके सबब कई अहम फाइल्स अब ऑफलाइन मूव की जा रही है और कई कामों की फाइल्स को सिस्टम के शुरू होने का इंतज़ार है। अहम बात तो यह है कि ई ऑफिस सिस्टम शुरू किए जाने के बाद एडिशनल कमिश्नर ने तमाम अफसरान और मुलाजमीन की रुख्सत मुअत्तल किए जाने का हुक्म जारी किया था और उसके 4 दिन बाद ही ई सिस्टम बंद हो गया, जिससे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहाते में मुख्तलिफ क़ियास आराइयों ने जन्म लिया है। अब असल हकीकत क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सर आपण सांगतो कारण प्रत्येक वेळेला भेटल्यावर मी असे केलं होतं तसे केलं होतं, परंतु सर या सर्व इतिहास ते रेकॉर्ड रूममध्ये जायचं, ज्यावेळेला मी ते शोधाशोधी घ्यायचं ते रेकॉर्डच सापडायची नाही आणि त्यामुळे सर या रेकॉर्ड आता जतन करतोय आणि ते व्यवस्थित कॉम्पॅक्ट रूममध्ये ठेवलं आणि यापुढे किती आग लागली तरी ते बचाव होऊ शकतं, अशा पद्धतीचं आधुनिक कॉम्पॅक्ट रूम सर या जवळपास मला जेवढं मराठवाड्याचं तर कुठेही नगरपालिकामध्ये नाही आहे, ते आज आपल्या हस्ते लोकार्पण झालं। खानगी एजेंसी की मारिफत मुकर्रर किए गए 39 आर्जी मुलाजिमीन जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे, टाइपिंग इम्तिहान में फ़ेल हो गए, लिहाजा म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने उनके मुलाजमत ख़त्म करने से मुताल्लिक़ अहकामात जारी कर दिए। नाज़रीन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अफरादी क़ुव्वत के कम होने के सबब इंतज़ामिया खानगी एजेंसी की मारिफत आर्जी मुलाजमीन के तकर्रुरात करके किसी तरह अपना काम चलाता आ रहा है, मगर हैरत की बात है कि यहाँ के दीगर मुस्तकिल मुलाजमीन ही की तरह खानगी एजेंसियों की मारिफत मुकर्रर करदा कुछ मुलाजमीन टाइपिंग से नावाकिफ़ हैं। इस बात का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने गुज़िश्ता दिनों उन मुलाजमीन का टाइपिंग टेस्ट लिया, जिनके नताइज बुध को ज़ाहिर किए गए, जिनमें खानगी एजेंसियों की मारिफत मुकर्रर करदा 39 मुलाजमीन नाकाम हो गए, लिहाजा उन सभी की मुलाजिमत म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने ख़त्म कर दी। चूँकि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने वज़ीर आला की जानिब से दिए गए 100 दिन के कामों के टारगेट के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का सभी काम ई ऑफिस सिस्टम से करने का फ़ैसला किया, जिसके लिए सभी मुलाजिमीन को कंप्यूटर टाइपिंग आना लाजमी है। लिहाजा म्यूनसिपल कमिश्नर की हिदायत पर एएमसी के मुस्तकिल मुलाजिमीन के साथ साथ खानगी एजेंसियों की मारिफत मुकर्रर करदा मुलाजिमीन का टाइपिंग टेस्ट लिया गया। खानगी एजेंसियों की मारिफत मुकर्रर करदा जिन 39 ऑपरेटर्स को टाइपिंग नहीं आई, उनमें 21 ऑपरेटर्स महाराणा कंपनी की मारिफत और 18 ऑपरेटर्स गैलेक्सी कंपनी की मारिफत मुकर्रर किए गए थे, जिनमें से कुछ ऑपरेटर्स ई टेंडरिंग और कुछ मुलाजिमीन अकाउंट डिपार्टमेंट में खिदमत अंजाम दे रहे थे, जिनकी मुलाजिमत 20 मई से ख़त्म कर दी गई है। जालना शहर की नूतन वसाहत में इलेक्ट्रिक डीपी में अचानक आग लग गई, जिसमें ट्रांसफार्मर मुकम्मल तौर पर जल कर तबाह हो गया और नूतन वसाहत में कुछ वक्त के लिए अंधेरा छा गया। गुज़िश्ता दोपहर को नूतन वसाहत में मौजूद इलेक्ट्रिक डीपी को अचानक लगी इस आग में ट्रांसफार्मर मुकम्मल तौर पर जल कर खाक हो गया। यह हादसा सड़क के किनारे होने के सबब वहां ट्रैफिक जाम हो गया। नाजरीन, अभी बरसात का मौसम शुरू भी नहीं हुआ कि थोड़ी सी बेमौसमी बरसात के सबब बिजली की यहां आंख मुचोली का खेल शुरू हो गया और जब बिजली बहाल की जाने लगी तो अचानक वोल्टेज बढ़ जाने के सबब डीपीज़ में आग लगने के वाक़यात में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। जालना शहर के नूतन वसाहत में भी ट्रांसफार्मर में आग लग गई और न सिर्फ डीपी जलकर खाक हो गई बल्कि बिजली के तार टूट कर गिर गए। खुशकिस्मती से कोई उन तारों की जद में नहीं आया, बसूरत दीगर कोई अनहोनी हो जाती। जालना के साबिक एमएलए कैलाश गोरंटियाल ने मौजूदा एमएलए अर्जुन खोतकर के पीए
किशोर पाटिल पर 15 करोड़ रुपये वसूलने का इल्जाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। अंदाज कमिटीच्या पूर्वनियोजित दौऱ्याच्या अगोदर किशोर पाटील नावाचा व्यक्ती, जे अर्जुन खोतकरचा पीए, आश्वासन कमिटीचं नाव, अंदाज कमिटीच्या नावाने अधिकारी, कॉन्ट्रॅक्टर अशा लोकांकडून एकूण 15 कोटी रुपये त्यांनी जमा केले। त्या 15 कोटीपैकी 5 कोटी काल त्या विश्रामगृहामध्ये पकडले गेले। अगोदर मी अनिल गोटे यांना मनापासून अभिनंदन करतो, कारण या वयात एक मोठा भ्रष्टाचार त्यांनी काढला। अंदाज कमिटीचे अध्यक्ष तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की आपले जालन्याचे आमदार अर्जुन खोतकर आहे आणि किशोर पाटील त्यांचा पीए। जोपर्यंत अध्यक्ष पीएला बोलत नाही तोपर्यंत पीए काही काम करत नाही आणि हे जे पैसे गोळा झाले त्याचा मुख्य आरोप अर्जुन खोतकर आहे। अनिल गोटेने तक्रार केलेली आहे, संजय राऊतने तक्रार केलेली आहे। काल रात्री मला लोकशाही पेपरच्या वार्ताहराचा फोन आला होता की असं मॅटर झालं। मी रात्री बघितलं आणि अनिल गोटे मागणी करत आहे की लाचलुचपत प्रतिबंध जे आपली असं आहे त्याला हे म्हणतात अँटी करप्शन, त्यांनी दखल घेतलं पाहिजे किंवा पोलीसच्या एसपीला बोलले ते दखल, पण कोणी तिथं आले नाही। कारण सरकार यांची दाबण्याचा प्रयत्न करतात। एकीकडे देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय नरेंद्र मोदी सांगतात ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मग हे काय? माझा पहिला प्रश्न आहे। 3 दिवस अगोदर लोकमत पेपरमध्ये सन्माननीय मुख्यमंत्री यांचा एक निवेदन होता की जे कमिटी आहे त्या कमिटीमध्ये पूर्वी भ्रष्टाचार होता, आता तसा होऊ देत नाही। 3 दिवस अगोदरच बोलले, पण आता हा प्रकरण झाला। माझी विनंती आहे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार या डायरेक्ट खोतकर इन्व्हॉल्व आहे, याच्यावर गुन्हे आपण दाखल का करत नाही, का केले नाही आणि याच्यावर कारवाई का करत नाही? म्हणजे एकीकडे लोकांना सांगायचं की आम्ही क्लीन चिट आहे, आणि दुसरीकडे जे तुमचे आमदार भ्रष्टाचार करतात, तुमचे आमदार पैसे मागतात, त्याच्याबद्दल तुम्ही काही करत नाही। त्याच्यावर तुम्ही कारवाई केल्या पाहिजे, नाहीतर आम्ही जनआंदोलन या माध्यमातून आम्ही करणार। साइबर जालसाजों ने महावितरण की बोगस वेबसाइट बनाई और नौकर भर्ती का इश्तिहार दे दिया, लिहाजा मुताल्लिका इंतज़ामिया ने साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की है। साथ ही महावितरण ने शहरियान से ये भी अपील की है कि वो साइबर जालसाजों के झांसे में हरगिज़ न आएं। महावितरण कंपनी की जानिब से दी गई इत्तला के मुताबिक साइबर जालसाजों ने www.mahavitranmaharashtra.com के नाम से एक फेक वेबसाइट तैयार किया है और उस पर चपरासी, वॉचमैन, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई और सफाई मजदूर इन ओहदों पर तकर्रुरात के लिए ख्वाहिशमंद अफराद से दरख्वास्तें तलब की हैं, जो सरासर गलत और बेबुनियाद है। लिहाजा इन साइबर जालसाजों के खिलाफ साइबर क्राइम ब्रांच से शिकायत की गई है। महावितरण के जिम्मेदारान ने शहरियान से अपील की है कि साइबर जालसाजों के झांसे में हरगिज़ न आएं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 11वीं जमात में दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दही का सिलसिला हुआ शुरू। जिला औरंगाबाद के कॉलेजेस में 83,600 दाखिलों की है गुंजाइश। 30 मई को जाहिर की जाएगी मेरिट लिस्ट। मुस्तकबिल के कानूनदा कहलाने वाले 53 स्टूडेंट्स पाए गए मास कॉपी करते हुए। बीड़ के बार्शी रोड पर मौजूद लॉ कॉलेज में पेश आया नकलबाजी का वाकया। तमाम नकलबाजों का परफॉर्मेंस रद्द करने की हिदायत। संत गाड़गे बाबा देही सफाई मुहिम के तहत मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों में किया जाने लगा है सफाई कामों का जायजा। इलाकाई सतह पर शुरू की गई जांच मुहिम में मुताल्लिका कन्नड़ और सोए गाँव का किया गया सर्वे। आगे देखिए होता है क्या। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मैनुअल काम खत्म करके ई ऑफिस शुरू किए जाने का जोरों शोर से किया गया था दावा, मगर गुज़िश्ता 5 दिनों से ई सिस्टम है बंद। अहम और ज़रूरी फाइलों ने शुरू कर दिया ऑफलाइन सफ़र। कहीं मुलाजिमीन को बरतरफ करने के सबब तो नहीं ई सिस्टम किया गया खराब, शहरियान का सवाल। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।